Okay, till now in this chapter, you have learned about circular flow of income, meaning of circular flow of income, different models of circular flow of income, phases of circular flow of income, circular flow of income in two-sector economy, their assumptions, circular flow of income in two-sector economy, its explanation with diagram, and lastly we have discussed about real flow and money flow. In today's class, we are going to learn the concept of stock and flow. The concept of stock and flow. The question arises, what is stock? What do you understand by the term stock? Stock refers to any variable which is measured at a particular point of time. I repeat, stock refers to any economic variable which is measured at a particular point of time. Stock concept do not have any time dimension. It is a timeless concept. Some of the examples of stock are goods stored in the godown as on 31st March 2020, national wealth, national capital, money supply, all these are examples of stock. I repeat, stock refers to any economic variable which is measured at a particular point of time. There is no time dimension in stock concept. It is a timeless concept. Some of the examples of stock are goods stored in the godown of a factory as on 31st of March 2020, money supply, national capital, national wealth, etc. Whereas flow refers to that economic variable which is measured during a period of time. There is time dimension. There is the starting point and there is the end point. It is a concept which has time dimension. Some of the examples of flow are national income, national income, production, bank balance. Sorry, bank balance is an example of stock concept. National income is the example of flow concept. Let me repeat it once more. Flow refers to that economic variable which is measured during a period of time. That time frame can be of a minute, an hour, a day, a week, a month, or a year. It has time dimension. The examples of a flow are national income, production, saving, investment, etc. स्टॉक, अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एक ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल है जिसकी माप हम एक निश्चित समय पर किया करते हैं. इसमें कोई समय अवधि नहीं होती है, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता. आप ये नहीं कह सकते हो कि कब से कब तक. बस किसी भी
अगर इकोनॉमिक यूनिट की हम माप कर रहे हैं एक निश्चित समय पर, तो वो स्टॉक कंसेप्ट कहलाता है। जैसे कि एक फैक्ट्री के गोडाउन में जो वस्तुएं पड़ी हुई हैं 31 मार्च 2020 एक निश्चित समय पर, वो कहलाएगा स्टॉक कंसेप्ट। जब कभी भी आप कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक यूनिट की माप करते हो एक निश्चित समय पर, तो वो कहलाता है स्टॉक कंसेप्ट। राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्र की पूंजी, ये मनी सप्लाई, ये सारे के सारे उदाहरण हैं आपके स्टॉक कंसेप्ट के। वहीं फ्लो की अगर बात कही जाए तो फ्लो एक ऐसा इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है, एक ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल होता है जिसकी माप हम एक निश्चित समय के दौरान करते हैं। वो समय अवधि 1 मिनट की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 1 सप्ताह की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, या 1 साल की हो सकती है। जैसे कि अगर नेशनल इनकम की बात कही जाए तो नेशनल इनकम आप सभी जानते हो कि नेशनल इनकम मापा जाता है, उसका आकलन किया जाता है 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर एक टाइम फ्रेम है, 1 साल के दौरान देश की राष्ट्रीय आय कितनी रही उस चीज को हम बताते हैं, इसलिए ये एक फ्लो कंसेप्ट है। तो कुल मिलाकर आपने जाना कि स्टॉक refers to that economic variable which is measured at a particular point of time. Under stock concept, there is no time dimension. It is a timeless concept. Its examples are goods stored in the factory go down as on 31st March 2020, national capital, national wealth, money supply, etc. Whereas flow refers to any economic variable which is measured during a period of time, and that period of time may be of a minute, an hour, a day, a week, a month, or a year. Some of the examples Sir, we are not able. Sir, आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। अरे सर म्यूट किए हैं। अभी आ रही है। अब आ रही है सर। ओके आ रही है सर। ठीक। थैंक यू। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि फ्लो refers to any economic variable which is measured during a period of time. That period of time may be of a minute, an hour, a day, a week, a month, or a year. It is a concept which has time dimension. Some of the examples of flow are national income, production, etc. स्टॉक एक ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल होता है जिसकी माप निश्चित समय पर की जाती है, इसमें कोई टाइम डिस्क्रिप्शन नहीं होता। स्टॉक के कुछ एग्जांपल्स हैं। एक फैक्ट्री के गोडाउन में जो वस्तुएं पड़ी हुई हैं वो उदाहरण है स्टॉक की। नेशनल कैपिटल, नेशनल वेल्थ, मनी सप्लाई, ये सभी के सभी एग्जांपल्स हैं स्टॉक के। वहीं अगर फ्लो की बात कही जाए तो किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल की अगर हम माप करते हैं एक निश्चित समय के दौरान तो उसे हम कहते हैं फ्लो कंसेप्ट। फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है और ये टाइम डायमेंशन 1 मिनट,
एक घंटे, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने या फिर एक साल का हो सकता है। फ्लो के कुछ उदाहरण हैं नेशनल इनकम, प्रोडक्शन वगैरह। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कभी भी हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम मापा जाता है एक साल के लिए। यहाँ पर टाइम डायमेंशन क्या हुआ, तो पूरा एक साल हुआ, इसलिए नेशनल इनकम जो है वो उदाहरण है फ्लो का। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्टॉक और फ्लो को समझने के लिए। आपके घर के वाटर टैंक में जो पानी भरा हुआ है अभी इस निश्चित समय पर, वो उदाहरण होगा स्टॉक का। द अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द वाटर टैंक ऑफ योर हाउस राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। आपके घर के वाटर टैंक में जितना पानी भरा हुआ है अभी फिलहाल, वो उदाहरण है स्टॉक का। वहीं अगर फ्लो की बात कही जाए तो उस वाटर टैंक में प्रति घंटे पानी जितना भर रहा है वो उदाहरण होगा फ्लो का। एक चीज और, स्टॉक जो है स्थिरता को दर्शाता है, इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट। वहीं फ्लो जो है वो एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है, मतलब इसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि आपके घर के वाटर टैंक में जो पानी भर रहा है वो हर घंटे जितना पानी भर रहा है आपके वाटर टैंक में, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि एक घंटे में मान लीजिए 100 लीटर पानी अगर भर रहा है, तो अगले एक घंटे में पता चला कि 110 लीटर पानी भरा आपके वाटर टैंक में। और ये टोटली निर्भर करता है इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक। और आपके इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फ्लो में निरंतर चेंज होता रहता है। नेशनल इनकम की अगर बात करें तो पिछले साल का जो नेशनल इनकम रहा इस साल के नेशनल इनकम से अलग होगा। तो फ्लो एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है, ये इसमें चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। और कुछ अगर उदाहरण ले जाए तो स्टॉक का एक एग्जांपल ले सकते हो कि आपके कॉलोनी में जितने मकान हैं, आज 1 जून 2020 1 जून 2020 आपके कॉलोनी में जितने हाउसेस हैं वो उदाहरण होगा स्टॉक का। वहीं अगर फ्लो की मैं बात करूं तो पिछले एक साल के दौरान आपके कॉलोनी में जितने मकान बने हैं, एक साल के दौरान पिछले एक साल के दौरान आपके कॉलोनी में जितने मकान बने हैं वो उदाहरण होगा फ्लो का। पॉपुलेशन की अगर बात कही जाए, पॉपुलेशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 31 दिसंबर 2019 को भारत की जितनी जनसंख्या रही वो उदाहरण होगा स्टॉक का। आई रिपीट, population of India as on 31st December 2019 will be an example of stock, whereas birth rate or death rate during 2019 will be an example of flow. तो कुछ एग्जाम्पल में दिया स्टॉक और फ्लो को एक्सप्लेन करते हुए। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं क्योंकि इसे आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि स्टॉक और फ्लो की मीनिंग बताएं, या फिर उन दोनों में आप डिफरेंशिएट करें, या फिर कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कंसेप्ट स्टॉक कंसेप्ट है और कौन सा कंसेप्ट फ्लो कंसेप्ट है। एक बार फिर से मैं इन तीनों पॉइंट्स पर आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं, ये स्टॉक और फ्लो। स्टॉक मीनिंग के लिहाज से अगर बात कही जाए तो स्टॉक एक ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल होता है जिसकी माप एक निश्चित समय पर की जाती है। ये एक टाइमलेस कंसेप्ट है, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसमें कोई समय अवधि नहीं होती। किसी भी चीज का अगर आप माप कर रहे हो एक निश्चित समय पर,
तो वो उदाहरण होगा स्टॉक का। जैसे कि आपका मोबाइल बैलेंस, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर शो होता है, एग्जाम्पल है स्टॉक का। बैंक बैलेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके बैंक के खातों में कितना पैसा वो शो किया जाता है, वो एग्जाम्पल है स्टॉक का। और इसके उदाहरण है मनी सप्लाई, नेशनल कैपिटल, नेशनल वेल्थ वगैरह। वहीं फ्लो की अगर बात कही जाए तो फ्लो एक ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल होता है जिसकी माप हम एक निश्चित समय के दौरान करते हैं। इसमें टाइम डायमेंशन होता है, समय अवधि होती है, और वो समय अवधि, वो टाइम डायमेंशन 1 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने या फिर 1 साल का भी हो सकता है। फ्लो के कुछ उदाहरण हैं नेशनल इनकम, प्रोडक्शन वगैरह। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा? तो स्टॉक एक ऐसा कंसेप्ट है जो मापा जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, वहीं फ्लो एक ऐसा कंसेप्ट है जो मापा जाता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक कंसेप्ट से मेरा मतलब ये है कि ये स्थिरता को दर्शाता है। जैसे कि 31 दिसंबर 2019 को 19 तक भारत की कुल जनसंख्या कितनी रही, ये स्थिर है। 31 दिसंबर 2019 तक भारत की जनसंख्या कितनी रही, वो स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि ये एक स्थिरता को दर्शा रहा है। एक फैक्ट्री के गोडाउन में 31 मार्च 2020 तक सामान कितना पड़ा रहा, वो स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि ये स्थिरता को दर्शा रहा है। वहीं अगर फ्लो की बात कही जाए तो फ्लो एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है। डायनेमिक कंसेप्ट से मेरा मतलब यह है कि इसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम, हर साल का नेशनल इनकम अलग होता है। आपके घर के वाटर टैंक में प्रति घंटा पानी जो भर रहा है, उसमें फ्लो ऑफ वाटर में चेंजेस होते रहते हैं, तो वो एक फ्लो कंसेप्ट हुआ। बर्थ रेट 1 साल के लिए मापा जाता है, डेथ रेट 1 साल के लिए मापा जाता है, और इसमें फ्लक्चुएशन, चेंजेस जो है वो होते रहते हैं, इसलिए ये एक आपका डायनेमिक कंसेप्ट है। अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे कि आइडेंटिफाई प्रोडक्शन इज अ स्टॉक कंसेप्ट और अ फ्लो कंसेप्ट। प्रोडक्शन क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है या फिर फ्लो कंसेप्ट है? व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज अ स्टॉक कंसेप्ट और अ फ्लो कंसेप्ट? एनीवन? सर फ्लो कंसेप्ट है सर। ओके, प्रोडक्शन इज अ फ्लो कंसेप्ट। प्रोडक्शन एक फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो हमेशा हम मापते हैं 1 साल के लिए, या उसमें टाइम डायमेंशन होता है। 1 महीने में एक फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, या 1 साल के दौरान एक फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, ये देखा जाता है। इसलिए ये एक प्रोडक्शन जो है वो एक उदाहरण हुआ फ्लो कंसेप्ट का। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आपको टास्क ये मैं दे रहा हूं कि इन दोनों ही टर्म से रिलेटेड आपके कई बुक में कई सारे एग्जांपल्स दिए गए होंगे। आप वो आइडेंटिफाई करना कि स्टॉक कंसेप्ट क्या है और फ्लो कंसेप्ट क्या है। इस चैप्टर का जो मेन लास्ट पॉइंट था वही था, वो यही था, स्टॉक एंड फ्लो। एक बार फिर से मैं ये सब कुछ दोहरा दे रहा हूं जो कि इस पूरे चैप्टर में आप जाने हो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से शुरू करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? मीनिंग, मॉडल्स एंड फेजेस। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम is a diagrammatic representation
showing the interrelationship and interdependence between different macroeconomic sectors, that is households, firms, government and external sector. I repeat, circular flow of income is a pictorial illustration showing the interrelationship and interdependence between different macroeconomic sectors such as households, firms, government and external sector. Moving towards its models, there are three different models of circular flow of income. First, circular flow of income in two-sector economy comprising of only households and firms. Second, circular flow of income in three-sector economy comprising of households, firms and government. Third, circular flow of income in three-sector economy, circular flow of income in four-sector economy comprising of households, firms, government and external sector. I repeat, there are three models of circular flow of income. The first one is circular flow of income in two-sector economy, which consists of households and firms. Second, circular flow of income in three-sector economy, which comprises of households, firms and government. And third, circular flow of income in four-sector economy, which consists of households, firms, government and external sector. Speaking about the different phases of circular flow of income, there are three different phases of circular flow of income. The first phase is known as generation phase. In the generation phase of circular flow of income, firms generate, produces or manufactures goods and services by utilizing the factor services provided by households. Second, distribution phase. In the distribution phase of circular flow of income, firms distribute factor income in the form of rent, wages, interest and profit to household for their factor services. And third one is disposition phase. In the disposition phase of circular flow of income, households spend their factor income on the purchase of goods and services from the firms. Circular flow of income की मीनिंग में आप सबों को बताया गया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि ये शो करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि ये शो करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. अगर ये सब कुछ हम एक डायग्राम के सहारे शो करते हैं तो वो कहलाता है, वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. मॉडल्स की अगर बात कही जाए तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीन मॉडल्स हैं. पहला, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें कि केवल हाउसहोल्ड्स और फर्म्स के रिलेशन को शो किया जाता है. दूसरा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें कि हाउसहोल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट के रिलेशन को हम शो करते हैं डायग्रामेटिकली. और थर्ड है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें कि हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, इन चारों के रिलेशन को शो किया जाता है. फेजेस की बात करें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुल 3 फेजेस हैं. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पहला फेज कहा जाता है जनरेशन फेज.
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जनरेशन फेज में फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करती हैं, जनरेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, हाउस होल्ड के फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा फेज जिसे कि हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इस फेज में फर्म जो है फैक्टर इनकम जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट बांटता है हाउस होल्ड को उसके फैक्टर सर्विसेज के बदले में। और तीसरा है डिस्पोजिशन फेज, इस फेज में हाउस होल्ड को जो भी इनकम प्राप्त होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में, हाउस होल्ड वो सारा का सारा इनकम जो है वो खर्च कर देता है वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर, जो कि वो खरीद किया करता है फर्म से। नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सर, हाँ हेलो सर, सत्या का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उसका। सर, हाँ सर सत्या का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, देख रहे हैं। वो सर वो बहुत देर से कर रही है। ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सभी कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। पर उसका नहीं हो पा रहा है। ओके, मैं बात करूंगा बाद में। अभी आप ये देख लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ ओके, इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी के एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या रहे? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी में हम ये मानकर चलते हैं कि केवल दो ही सेक्टर्स काम करते हैं, और वो दो सेक्टर्स हैं हाउसहोल्ड्स और फर्म्स। सेकेंडली, हम ये मानकर चलते हैं कि हाउस होल्ड्स मालिक होते हैं सभी के सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के, और वो इस सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उपलब्ध करवाते हैं, बेचते हैं फर्म को। थर्ड, हम ये मानकर चलते हैं कि फर्म हाउस होल्ड से जो भी फैक्टर सर्विसेज प्राप्त करता है, उन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए फर्म प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ, हम ये मानकर चलते हैं कि फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट किया करता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में, हाउस होल्ड के फैक्टर सर्विसेज के बदले में। फिफ्थ, हम ये मानकर चलते हैं कि हाउस होल्ड को जो भी इनकम प्राप्त होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में, हाउस होल्ड वो सारा का सारा इनकम जो है खर्च कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद पर, जो कि वो खरीद किया करता है फर्म से। सिक्स्थ, हम ये मानकर चलते हैं कि इस तरह के इकोनॉमी में कोई बचत नहीं होता। सेवेंथ, हम ये मानकर चलते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी में सरकार का कोई रोल नहीं होता। एंड लास्टली 8 पॉइंट, हम ये मानकर चलते हैं कि इस तरह के इकोनॉमी जो है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी से मेरा मतलब है कि इस तरह के इकोनॉमी में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ करता है। फिर आपका एक्सप्लेनेशन जो कि डायग्राम के सहारे दिया गया था। सर, फिफ्थ अजम्पशन थोड़ा बता दीजिए, वो वाला क्लियर नहीं हुआ। assumption number fifth। यस सर। Fifth assumption में, let me repeat it once again. Circular flow of income in two sector economy is based on some assumptions. The first assumption is under two sector economy the two sector economy consists of only two sectors, and those two sectors are households and firms. Second, we assume that households are the owners of factors of production and they provide these factors of production to the firms. Third, we assume that firm utilizes
the factors of production which is provided by the household for producing goods and services. Fourth, we assume that firm pays factor payment in the form of rent, wages, interest, and profit to the household for their factor services. Fifth, we assume that whatever income households receive in the form of rent, wages, interest, and profit, they spend their entire income on the purchase of goods and services which they purchase from the firms. Sixth, in this type of economy, there is no saving. Seventh, there is no role of government. And lastly, we assume that two-sector economy is a closed economy. A closed economy means an economy which do not have any export and import. उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन था जिसमें एक्सप्लेन करते हुए मैं कहा कि सबसे पहले हाउसहोल्ड्स मालिक होते हैं सभी के सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। वो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज बेच देते हैं फर्म को। फर्म उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करता है और तैयार करता है गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में हाउस होल्ड के लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज का योगदान रहा, तो उसके बदले में फर्म जो है हाउस होल्ड को पेमेंट किया करता है। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड को जो भी इनकम प्राप्त हुआ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में, हाउस होल्ड वो सारा का सारा इनकम जो है खर्च कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद पर, जो कि वो किया करता है फर्म से। और इस तरह से पैसा जो है वापस फ्लो करता है फर्म तक। फर्म फिर उन पैसों का इस्तेमाल करता है और हाउस होल्ड से खरीद करता है फैक्टर सर्विसेज, और वो पैसा फिर फ्लो करता है फर्म से हाउस होल्ड तक। ये जो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है पैसों का, इनकम का, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, इसी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट आपका टर्म रहा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो है क्या? द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिटवीन firms and households is known as real flow. It is always clockwise, whereas money flow, the continuous flow of money in between firms and households is known as money flow. It is always anti-clockwise. Real flow की अगर बात कही जाए तो ये जो निरंतर प्रवाह होता है वस्तुओं और सेवाओं का फर्म और हाउसहोल्ड के बीच, उसी को हम कहते हैं रियल फ्लो। वही मनी फ्लो क्या होता है? तो जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है मनी का इन बिटवीन फर्म एंड हाउसहोल्ड, उसी को हम कहते हैं मनी फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो, तो स्टॉक के मीनिंग में आपने आज जाना कि किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को अगर हम मापते हैं एक निश्चित समय पर तो उसे कहा जाता है स्टॉक। वहीं फ्लो, अगर कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल मापा जाए एक निश्चित समय के दौरान तो उसे हम कहते हैं फ्लो। किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल की अगर माप की जाए एक निश्चित समय पर तो वो कहलाता है स्टॉक। वहीं कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल अगर आप माप रहे हो एक निश्चित समय के दौरान तो उसे हम कहते हैं फ्लो। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, वहीं फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है, और ये टाइम डायमेंशन 1 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह या 1 साल का हो सकता है। स्टॉक जो है वो एक स्टैटिक कंसेप्ट है, वहीं फ्लो जो है वो एक डायनेमिक कंसेप्ट है। स्टॉक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेशनल कैपिटल, नेशनल वेल्थ, मनी सप्लाई एक्सेट्रा। वहीं फ्लो के एग्जाम्पल हैं नेशनल इनकम, बर्थ रेट, डेथ रेट, प्रोडक्शन
एक्सेट्रा। कोई डाउट है आप सबों को? नो सर। देखिए आगे अगले क्लास में हम समझेंगे कुछ टर्म्स जैसे कि डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट्स, ट्रांसफर इनकम, इस जैसे टर्म को हम समझेंगे। आप बेसिकली एक बार इन सभी टर्म्स को खुद से देख लें, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट्स। अभी के लिए अगर इन सभी पॉइंट्स में कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नो डाउट सर। ओके, फिर मैं ये क्लास जो है आपका यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। सर